Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार के सभी लोग बढ़िया है। आज हम पार्टीशन वैल्यूज़ को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे, एक कदम आगे लेकर जाएंगे। हमेशा कहते हैं ना, कदम कदम बढ़ाए जा, 10 कदम आगे नहीं जाना है, एक कदम। तो उतना तो गारंटी कर लेते, जो एक कदम हमने लिया है, सटीक लिया है, परफेक्ट लिया है, और वो हमको समझ में आ चुका है। इन द पास्ट हमने पार्टीशन वैल्यूज़ को क्वार्टाइल्स के एंगल से समझ लिया है, और अभी हम समझ रहे हैं डिसाइल्स के एंगल से। अब जब वो एंगल होता है, उसमें भी 3 अलग अलग डिग्रीज आते हैं कि भैया आपका जो डेटा है वो किस प्रकार का डेटा है। कभी कभी वो अनग्रुप्ड होता है, कभी कभी वो ग्रुप्ड होता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसकी कनेक्शन में जो फॉर्मूलाज है वो यूज़ करने हैं। अगर ग्रुप्ड है, जिसमें कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल आता है 0 to 10, 10 to 50, 50 to 60, समथिंग लाइक दैट, देन इन दैट सिचुएशन आपको ये ग्रुप्ड का या कंटिन्यूअस डेटा का जो डिसाइल फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है। राइट नाउ अगर आप मेरा क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको D5 एंड D7 यूज़ करना है, इट इज़ ऑफ 100 स्टूडेंट्स, सो बेसिकली द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑफ 100 स्टूडेंट्स, बट इनके मार्क्स का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। द फर्स्ट टास्क इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढ लीजिए। ओके, तो हमने एक टेबल बना लिया जो मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में है, जो पहले से ही क्वेश्चन को उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉरस्पॉन्डिंगली 0 to 10 मार्क्स कितने बच्चों को मिला? 10। इतना तो बोल सकता हूँ, घर पे उनको बहुत फटके मिले रहेंगे क्योंकि मार्क्स कम थे ना। 10 to 20 भैया इनकी भी कोई बड़ी तारीफ तो हुई नहीं रहेगी। हाँ, जो 40-30 प्लस है उनकी तारीफ में भी डेफिनेटली हो गई रहेगी। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके 100 है, और क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आपको टोटल करना है, विच इवेंचुअली ऑल्सो कम्स टू 100। कीप द टेबल रेडी because it is this table which will help you find out the cumulative frequency and the class interval, and it is the class interval which will give you the difference in the class interval, the lower limit, the higher limit, the वगैरह वगैरह वगैरह, and the frequency also. Now अगली पेज पे अगर आप देखो तो दिस इज माई फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, सब्सटीट्यूट करने के लिए पहले ये तो पता कर लो कि कौन सा क्लास इंटरवल है। उसके लिए स्टेप 1 इज टू फाइंड आउट द डिसाइल क्लास, which is Jn, J multiply by n upon n is 100, confirm. J for our first point is 5, so 5 into 100 upon 10. When I do this particular calculation, हमें आता है size of 50th observation. It is important कि आप आपके डेटा में देखो कि ये 50th observation आता किधर है। इवन दो मैंने डिस्प्ले पे आंसर डाल दिया, बट यहाँ पे पीछे मैं दिखा देता हूँ।
कि वो 20 से ज्यादा, 60 से कम, मतलब विद इन 60, 50th ऑब्जर्वेशन तो आता ही है बिकॉज इट इज ए लेसर नंबर देन 60. सो दैट गिव्स यू योर क्लास ऑफ 20-30. दैट गिव्स यू योर क्लास इंटरवल ऑफ 20 to 30 मार्क्स विच इज रिटन हियर. नाउ ये 20 to 30 मार्क्स के कैटेगरी के साथ में आपको सोल्यूशन ऑफ ये पर्टिकुलर डिसाइड करना है, इन विच योर लोअर लिमिट इज 20, योर फ्रीक्वेंसी इज 40. वो आपको आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दिखता है. वेरी इंपॉर्टेंटली द 20 दैट यू सी हियर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो उस लाइन का नहीं है, उसके पहले का, क्योंकि वर्डिंग्स पढ़िए कहा क्या है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इमीडिएटली, नॉट फॉलोइंग, प्रीसीडिंग, ऊपर का, ऊपर का. तो ऊपर का आपको अकॉर्डिंगली लेना है. एंड व्हेन आई से अकॉर्डिंगली लेना है, प्लीज ये आप ये भी अंडरस्टैंड करें कि अगर मैं आपको ये दिखा दूं, हाँ, तो 60 सिलेक्टेड था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट उसके ऊपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 20. तो अगेन यू हैव टू ऑलवेज टेक प्रीसीडिंग, वेदर आप क्वार्टाइल करो, डिसाइल करो या परसेंटाइल करो. ओके, वंस आपका एल, एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एच द डिफरेंस, एंड एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर ये डिसाइड हो गया, इसके बाद में ना अगर आप मैथ्स में गलती करोगे तो ही आंसर रॉन्ग आएगा. अदरवाइज टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, ये सब्स्टिट्यूशन, अगर क्रिकेट का मैच है ना, तो अगर आपने प्लेयर्स बराबर सिलेक्ट कर लिए, कौन स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, कौन स्पेशलिस्ट बॉलर है, स्पिनर कौन करेगा, विकेट कीपिंग कौन करेगा, सिलेक्शन सही हुआ तो मैच भी अच्छा ही जाएगा. सिलेक्शन गलत होता है तो मैच भारी जाएगा ना, ऑब्वियसली. सो दिस इज अ फॉर्मूला इन विच द मेन सब्स्टिट्यूशन इज डन, इन विच वी हैव, एक मिनट, हाँ, 20 विच इज द लोअर लिमिट, क्योंकि हम D5 ढूंढ रहे हैं, J के जगह पे वो आया, N के जगह पे 100. 20 is the cumulative frequency of the preceding class, 10 is the interval, and 40 is the frequency of that particular category. इसके बाद में the only thing that remains is the multiplication and the division within the bracket. When you do that, you get 50 minus 20. कंटिन्यू करोगे तो ब्रैकेट का आंसर 0.75, ओपन द ब्रैकेट इनटू 10. व्हेन यू डू दैट आपको 7.5 आता है, एंड वेरी सिंपली पुट आपका D5 का आंसर 27.5 मार्क्स, बिकॉज वी नो कि ये एनालिसिस मार्क्स का था, इसके लिए यहाँ पे मार्क्स आया है. नाउ दिस इज फॉर D5, बट बिसाइड्स D5 उन्होंने आपको D7 भी कहा है. D7 के लिए पूरी कहानी वापस, बट टेबल रिपीट करने की जरूरत नहीं, टेबल रिमेन्स द सेम. ओके, इसमें पहले क्या ढूंढो, पहले तो आप D7 के लिए जो उसका रिस्पेक्टिव क्वार्टाइल क्लास आता है ना, सॉरी मैं डिसाइल क्लास आता है, पहले वो ढूंढ लीजिए. तो उसका स्टेप 1 ऐसे है, साइज ऑफ 70. तो ये जो 70 है ये आपको कहाँ दिखता है, वेल दिखा देता हूँ. तो 60 से ज़्यादा, 80 से कम, मतलब विद इन 80 आपको 70th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, क्लास इंटरवल 30 to 40. सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप अगर आपको सूट सिलाना है, सलवार सिलाना है, तो कपड़े का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप वो गड़बड़ करो तो फिर पता नहीं बाद में टमाटर आप दिख जाओगे, करेला आप दिख जाओगे, अगर कलर में गड़बड़ हो जाएगा. सो 70th observation lies in CF80. Therefore, the 7th decile class is 30-40. Once ये selection हो गया, then step 2 में the formula used for grouped data can be done. But in that, your lower limit, आपका frequency, okay, number of observations, cumulative frequency of the preceding class, okay, and H, which is the interval in the class. सब्स्टिट्यूशन मेन स्टेप बराबर से लिख लिया. इसके बाद में मैं आपका हाथ नहीं थाम सकता, क्योंकि इसके बाद में आप बड़े हो चुके हो, आप सॉल्व कर लो, हाँ, बट गलत मत करना. ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेना, एंड व्हेन यू ओपन अप द ब्रैकेट यू लैंड अप विथ 0.5 into 10, विच विल गिव यू एग्जैक्टली
35 marks. Okay, this is how you manage and solve the grouped data या continuous data when you are solving D side. We still have percentile remaining which as a student आपके लिए बहुत काम आएगा, उसका knowledge वो हम अगली बार से करेंगे. आज के लिए इतना ही जी. आप भी ज़्यादा थक ना जाओ, मैं भी ज़्यादा थक ना जाऊँ. पुराने मित्र हो तो कृपया करके शेयरिंग करते रहे, नए मित्र हो तो कृपया करके आप सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं. कमेंट बॉक्स हमेशा अवेलेबल होता है जी, उसका दरवाज़ा हम कभी बंद नहीं करते हैं. आप सजेशंस, आपकी तकरार, कंप्लेंट्स, आपके सजेशंस, आपके रिक्वेस्ट आप उसके अंदर लिख के हमें देख सकते हो. डाउट्स, यस, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो. जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए. बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.